Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel. Today, we are going to study again part 2 Python list. In order to continue with the previous video of Python lists, part 1, where we had studied what is Python list, types of Python lists, creation and traversal. That we have studied in previous part 1. In this part, we will study copying and nesting of lists, comparing lists, operations on lists. In operations, we will study concatenation, replication, membership testing, indexing and slicing. So let us start with the video with these topics. Number 1, copying a list by assigning or aliasing. लिस्ट को आप कॉपी कर सकते हैं दूसरी लिस्ट में, उसका नाम बदल करके या दूसरी लिस्ट में उसे आप कॉपी कर सकते हैं. लाइक हेयर लिस्ट 1 इज गिवन 10, 20, 30, 40. लिस्ट 1 एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू 10, 20, 30, 40 है. लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1. यहां आपने असाइन कर दिया, लिस्ट 1 हैज बीन असाइंड टू न्यू list object, that is list 2. Print list 1, it is 10, 20, 30, 40. Print list 2, the same list is being printed. So this is, you can say, assigning or aliasing also. इसी को हम aliasing कहते हैं. list 1 का एक तरह से आपने alias change कर दिया list 2. If I see the ID of list 1, location is 478 47568 ID of list 2 is also same. Whenever we make any change in the list 1, the same change is going to be reflected in the list 2 also. So अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ list of 0 equal to 50, that means list 1 का जो पहला element है, in place of 10 I am changing it to 50. So list 1 has become 50, 20, 30, 40. And if I check the list 2 also, so list 2 is also the same value, 50, 20, 30, 40. So this shows that list 2 is the alias of list 1. तो इस तरह से आप असाइन करके एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में, both the objects will indicate the same object, I mean same content on same memory location. यहाँ पर list 1 और list 2 दोनों एक ही memory location को indicate करते हैं. इसलिए इसमें हम कोई चेंज करेंगे एक चीज में, एक लिस्ट में कोई चेंज करेंगे तो दूसरी लिस्ट में रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. सेकंड, आप दूसरी तरीके से भी कॉपी कर सकते हैं. यहाँ देखें, लिस्ट 1 इज अगेन द सेम कंटेंट 10, 20, 30, 40 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट. लिस्ट 2 में मैं लिस्ट 1 को असाइन कर रहा हूं बाय यूजिंग लिस्ट फंक्शन. लिस्ट आगे लगा दें और यहाँ पर ब्रैकेट में कोई दूसरी लिस्ट दे दें. So that can be assigned to another list. यहाँ पर print list 1 करें. So list 1 is same. Print list 2. List 2 is also having same value. But if I check the ID of list 1 and list 2, they are different, having different IDs. यहाँ पर पीछे वाले एग्जाम्पल की तरह नहीं है. यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, although both the objects list 1 and list 2 are having same content, same list of values, but they are being assigned different memory locations. इसका memory location list 1 का 50456936 और list 2 का ID है 46669536. अगर मैं list 1 के किसी फर्स्ट वैल्यू को चेंज करता हूं, list 1 of 0 equal to 50, तो आपका लिस्ट 2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. Whenever we print list 1 and list 2, after printing it, we can observe that list 1 content has been changed 50, 20, 30, 40, but content of list 2 is, I mean, remains the same. And if I mean check the ID of list 1 and list 2, so ID of list 1 and list 2 remains as it is, as earlier. That is different location. So अगर आप लिस्ट फंक्शन से दो लिस्ट को असाइन करते हो, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को कन्वर्ट करके असाइन करते हो, तो उनकी मेमोरी लोकेशंस डिफरेंट होती हैं, इवन इफ दे आर होल्डिंग द सेम वैल्यूज.
नाउ कॉपिंग बाय स्लाइसिंग, स्लाइसिंग करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? सबसेट ऑफ अ लिस्ट, लिस्ट का सबसेट, लिस्ट का एक छोटा हिस्सा स्लाइसिंग कहलाता है। तो यहाँ पर स्लाइसिंग करके मैं पूरा हिस्सा भी आप निकाल सकते हैं। लिस्ट वन का ये कंप्लीट हिस्सा है, कॉलन से सेपरेट करते हैं इसको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन। तो इस कॉलन को का मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरे सारे एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड, ऑल एलिमेंट्स आर टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिस्ट वन एंड शुड बी असाइंड टू लिस्ट वन, लिस्ट टू। दोनों को हम प्रिंट कर रहे हैं तो वी आर हैविंग द सेम कंटेंट, यू कैन सी 10 20 30 40, but if I check the IDs of both the list objects, so it is found different. 50456816 50408704। अगर मैं लिस्ट वन का कोई भी वैल्यू चेंज करता हूं, सपोज लिस्ट वन ऑफ 0 इक्वल टू 50, इस 10 की जगह मैं 50 ओवरराइट कर रहा हूं, तो आई कैन चेक द लिस्ट अगेन वेदर लिस्ट टू इज बीइंग अफेक्टेड और नॉट। तो लिस्ट वन और लिस्ट टू को प्रिंट करने के बाद वी ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट लिस्ट, लिस्ट वन इज चेंज्ड, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट वन इज चेंज्ड, but list 2 remains same because both the lists are located at different in cell references। दोनों का IDs, लिस्ट ID क्या है? डिफरेंट है। ओके, this is how we can copy a list using slicing into another list। एक कॉपी फंक्शन है, इसके थ्रू भी आप एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में असाइन कर सकते हैं, एक लिस्ट की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, दूसरी कॉपी। हियर यू हैव टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल दैट इज कॉपी मॉड्यूल, इंपोर्ट कॉपी। उसके बाद लिस्ट वन हमने दिया 10 20 30 40, I am creating its copy as list 2, so list 2 equal to copy dot copy within bracket list 1। तो अब लिस्ट वन की कॉपी जो है वो लिस्ट टू में मैं डाल दिया। whenever we print it we will get the same value of list 1 as well as of list 2, but problem here is again the same that both the lists list 1 and list 2 have different IDs, different cell references। अगर मैं लिस्ट वन ऑफ 0 चेंज करता हूं, so after changing only the values of list 1 will be changed, that is it has become 50 20 30 40, but list 2's values remain same। okay, similarly the IDs of list 1 and list 2 are still different। तो इस तरह से हमने देखा कॉपी करने में कि जो पहला मेथड था मेरा, यहां पर जो मैंने डायरेक्ट असाइन किया था लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन, हियर बोथ द लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड ऑन द सेम मेमोरी सेल, दे आर पॉइंटिंग टू सेम मेमोरी सेल, एंड एनी चेंजेस मेड इन लिस्ट वन will be reflected in list 2, any changes made in list 2 will be reflected in list 1। इसे एक्चुअली एलियासिंग कहते हैं। बाकी जो तीनों तरीके हैं आपका लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके और स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके और कॉपी मॉड्यूल का कॉपी मेथड इस्तेमाल करके जो आप ये कॉपी कर रहे हैं, दैट इज जस्ट कॉपिंग इनटू अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, another object in the sense that their location, memory location will be different। उनका कंटेंट सिमिलर होते हुए भी मेमोरी लोकेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। नाउ पाइथन की नेस्टेड लिस्ट क्या है? जब भी कोई एक लिस्ट दूसरी लिस्ट के अंदर आप इंक्लूड करते हैं, कि whenever a list appears within another list, whenever a list includes another list, whenever a list consists of another list, it is said to be nested list। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को अकोमोडेट करना, कंसिस्ट करना, enclose करना, that is called as nested list। like you have studied nested if, nested loop,
all that. तो एक लूप के अंदर दूसरा लूप वाज नेस्टेड लूप. सो हेयर सिमिलर इज द केस नेस्टेड लिस्ट. यहाँ पर आप देखें सब्जेक्ट के मार्क्स में दिखा रहा हूं, ये लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बॉक्स ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट क्लोज है. इसके अंदर एक दूसरी लिस्ट दो एलिमेंट्स की आप देख रहे हैं, मैथ्स कॉमा 98 इनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट. इट इज अनदर लिस्ट इनक्लोज्ड कॉमा अनदर लिस्ट इनक्लोज्ड IP 99 फिजिक्स 78. ये सारी लिस्ट्स हैं, दे आर बीइंग इनक्लोज्ड विद इन अ बिग लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. अब इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? प्रिंट लिस्ट का नाम दैट इज सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ जीरो. ऑफ जीरो करेंगे तो ये आपका जो पहला लिस्ट छोटा सा है ये 0th पोजीशन, IP 99 सेकेंड फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट इंडेक्स नंबर, फिजिक्स 78 सेकेंड इंडेक्स नंबर, केमिस्ट्री 79 थर्ड इंडेक्स नंबर, इंग्लिश 80 फोर्थ इंडेक्स नंबर. So if I refer subject underscore marks of 0, so that means this complete list will be displayed. Okay? अगर इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मैं एक्सेस करना चाहता हूं कि लिस्ट के अंदर जो ये पहला छोटा लिस्ट है इसमें अगर मैं मैथ्स को अलग से एक्सेस करना चाहता हूं, 98 को अलग से एक्सेस करना चाहता हूं, एक्चुअली ये एक एरे 2 डायमेंशनल एरे बना रहा है जिसमें मैथ्स 98, उसके नीचे अगर हम लिखें IP 99, उसके नीचे लिखें फिजिक्स 78, केमिस्ट्री 79, इंग्लिश 80. इट इज फॉर्मिंग अ 2 डायमेंशनल एरे. तो यहाँ पर आपको 2 इंडेक्स यूज करना पड़ेगा अगर मैथ्स वाली ये इस लिस्ट के कंटेंट एक्सेस करने पड़ रहे हैं, आपको करने पड़े तो ये हम पहला इंडेक्स 0 लिखेंगे. अगर मैथ्स एक्सेस करना है तो 0 0 और इसका लिखेंगे 0 1. इसको अगर एक्सेस करना IP 99 को तो बिकॉज इट इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस बिग लिस्ट तो यहां मैं लिखूंगा 2 और सेकेंड एलिमेंट का ये 0th है तो 2 0 इंडेक्स नंबर, इसका 2 1 इंडेक्स नंबर. सॉरी ये आपका जो IP 99 है इसका इंडेक्स नंबर है 1. ये कंप्लीट इस लिस्ट का इंडेक्स नंबर 0, इस कंप्लीट लिस्ट का इंडेक्स नंबर 1. तो इसे IP को हम इंडिकेट करेंगे 1 0, 99 को इंडिकेट कर सकते हैं 1 1 एंड इट इज 2 2 0 2 1 3 0 3 1 4 0 4 1 लाइक दैट. तो आप देखें यहां पर मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट मार्क्स 0 0. ये आपका पूरा लिस्ट 0th पोजीशन पर है तो दैट इज वाई 0. उसमें से भी पहला एलिमेंट हैविंग इंडेक्स नंबर 0. सो 0 0. Here 2 indices are defined like we define in arrays, 2 dimensional arrays. Subject marks 0 1. This is 0th value और उसमें ये 98 0 1 फर्स्ट वैल्यू है. सो 0 1. तो इससे हमारा क्या प्रिंट हो रहा है? मैथ्स. और इस वाले एलिमेंट से प्रिंट हो रहा है 98. ओके. सिमिलरली इफ आई वांट टू प्रिंट IP, व्हाट शुड आई राइट? आई शुड राइट सब्जेक्ट अंडरस्कोर मार्क्स 1 0. 99 को रिट्रीव करना है सब्जेक्ट अंडरस्कोर मार्क्स 1 1 बिकॉज दिस एलिमेंट इज एट फर्स्ट पोजीशन. सो 1 और फर्स्ट में भी क्या है? ये 0th है, ये फर्स्ट है. All right, I think you have understood what is the nested list and how its elements can be accessed. Now, comparison of lists. Lists can be compared. Each element of two lists are compared in lexicographical order. Lexicographical order means alphabetical order और dictionary order. जैसे आपकी dictionary arrange होती है, पहला एलिमेंट ए है दो वर्ड्स में तो वो कॉमन छोड़ देता. उसके बाद सेकेंड एलिमेंट इज कंपेयर्ड इफ इट इज आल्सो फाउंड कॉमन. देन थर्ड एलिमेंट इज कंपेयर्ड, थर्ड कैरेक्टर इज कंपेयर्ड. आउट ऑफ दैट व्हिच वन इज लेस विल बी रिटन फर्स्ट, व्हिच वन इज ग्रेटर विल बी रिटन आफ्टरवर्ड्स. बिल्कुल डिक्शनरी के ऑर्डर में आपका ये कंपेयर करता है लिस्ट. Suppose list 1 is 100, 200, 300, comma.
list 2 is 100, 200, 300. Both are having same elements assigned in one line itself. लिस्ट 3 मैंने लिया 100 कॉमा, इसमें नेस्टेड लिस्ट लगा दिया 200 कॉमा 300, ये एक लिस्ट के अंदर लिस्ट लगा दिया. Now if I test print whether L1 is equal to L2, L1 is equal to L2, answer is true, because all elements of list object L1 are equal to completely all elements of object L2. Therefore, it is true. Print L1 equal to L3 is returning false, because L1 is having 100, 200, 300. Here also in L3 there are 100, 200, 300, but in logically in L3 there are only two elements. Number 100, number 2 a list with 200 and 300. So due to this dissimilarity, these two L1 and L3 are not similar. That is why false. Here, suppose L4 is again a list object having string type 100, 200, 300. L5 is having float type 100, 200, 300. L6 is again having 100, 200, 300 and 400, one more elements. Let us compare this, then it will clear your logic how comparison between two lists are done. Print L1 is equal to L4. It is false. L1 is 100, 200, 300, but L4 is in the form of string. Therefore, it is false. L1 greater than L2. L1 is 100, 200, 300 and greater than L2. L2 is again the same content 100, 200, 300. Therefore, neither one L1 is greater nor L1 is smaller than L2. Both are equal, that is why returning false. Here, L1 is less than L5. L1 having 3 elements with 100, 200, 300 and L5 is having 3 elements 100, 200 and 300. Its value is 100, 200, 300 written in points float. So values are compared actually. So in this case, L1 is not less than L5. It is similar. इसलिए false आ रहा है. Print L1 is equal to L5. Yes, L1 was this and L5 is this, but having float value. और float में से actual value निकाली जाएगी तो दोनों similar हैं. That is why it is true. Print L1 less than L6. L1 is less than L6. L6 having one more element. So it is not less. L1 is less than L6. Yes. L1 में 3 एलिमेंट्स हैं 100, 200, 300. यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं इसलिए L1 इससे लेस हुआ. ओके. नाउ either in number of elements और positional value में लेस होता तो ट्रू आता है. Print L5 is less than L6. L5 देखें आप 100, 200, 300 और L6 क्या है, 4 वैल्यूज के साथ है तो इसमें एक वैल्यू एक्स्ट्रा है, इसकी लेंथ बड़ी है इसलिए इट इज रिटर्निंग ट्रू. यहाँ पर कुछ कंपेरिजन्स दिए गए हैं, यू कैन सी एंड फाइंड आउट. It is just to clear your logic whether how these lists are compared lexicographically. 1, 2, 3, 4. यहाँ पर है 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4 is less than 4, 5, 6. Although यहाँ पर values ज़्यादा हैं, फिर भी इसका first element being compared with first element of another list and found that 1 is less than 4. That is why it is returning true. Here 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 3. तो यहाँ पर आपका 1, 1, 2, 2 इग्नोर कर देगा इसको. थर्ड एलिमेंट यहाँ पर 3 है, इसका थर्ड एलिमेंट 5 है. 3 is less than 5. That is why it will return true. So it is called as lexicographically. 1, 2, 3, 1, 2, 3 common है. 4 is less than 2 or not? No, false. 4 is not less than 2. False. That is why. 1, 0. पहला एलिमेंट देखें. 1 is less than 0. बोलिए. 1 is less than 0. It is false.
here one is greater than, यहाँ पर true तब आएगा, ये greater than होना चाहिए, this symbol should be greater than, please correct it. यहाँ पर अगर ये greater than है then only it will return true, since it is being written here 1 greater than 0, that is why true. So इसका 1 और इसका 0, यहाँ greater than का symbol लगा होना चाहिए, then it is true, otherwise it is false. So this is how we can compare the lists. Two lists किस तरह से compare की जाती हैं, इन exercises से आपको clear हो जाना चाहिए. Let us move to next. Now list operations. लिस्ट में कितनी तरह के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं. Here concatenation, दो लिस्ट्स को concatenate किया जा सकता है, ज्वाइन किया जा सकता है. एक लिस्ट की वैल्यू को रेप्लिकेट किया जा सकता है, मीन्स उसे रिपीट किया जा सकता है. सपोज 1 2 3 है, 1 2 3 को 5 बार रिपीट कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, दैट इज रेप्लिकेशन. Membership, whether a particular value is a member of that list or not, whether particular value exists in a list or not. If yes, it returns true, otherwise false. यहाँ पर in ऑपरेटर का, membership ऑपरेटर in और not in का इस्तेमाल किया जा सकता है. Indexing, as you know that the index value within the list from left to right starts from 0 1 2 3 4 and so on, and from right to left it is -1 -2 -3 -4. In previous video you have seen. So how indexing is done and how through indexes we can access each and every element of the list will be taught over here. Slicing, the part of, the subset of the particular list can be extracted using slicing. स्लाइसिंग के थ्रू हम बड़ी लिस्ट में से कुछ छोटी लिस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका पोर्शन निकाल सकते हैं, उसे चॉप आउट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग. सो लेट अस सी ईच एंड एवरी ऑपरेशंस वन बाय वन विद एग्जांपल्स. सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सी दिस एग्जांपल, लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं. लिस्ट कॉन्कैटिनेशन. Suppose we have a list 1 having two elements India and is, string type list है ये. और दूसरी लिस्ट में तैयार करता हूँ, लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस एक लिस्ट बॉक्स में, यानी कि बॉक्स ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में एक लिस्ट और दे रहा हूं मैं, माई हैविंग टू एलिमेंट्स माई एंड कंट्री. उसे मैं प्लस कर रहा हूं, कॉन्केटिनेट कर रहा हूं लिस्ट 1 में, और इसका जो रिजल्ट है दैट इज बीइंग असाइंड टू अनदर ऑब्जेक्ट लिस्ट 2. So what will happen? What will be the result? It will combine and will form a big list having 4 elements, that is India is my country. List 2 को जब मैं print करता हूं तो we can get India is my country, 4 elements. Now another list 3 is being written directly without using variables. 2 elements India and is string type plus my and country string type. So all these 4 elements will be combined together to be assigned to the list object list 3. So this is the content of list 3, India is my country, again the same content as earlier. Now numerically if we see, L1 is 10 20 30, L2 is 40 50 60. If I write L3 equal to L1 plus L2, so L3 will have all elements combined. First the element of list 1 plus the element of L2 concatenated together. They are not added, rather they are concatenated, joined together. 10 20 30 40 50 60. This is the content of list 3 L3. So you have, I think you have understood how string type elements in a list are concatenated, how numeric elements within two lists are concatenated to form the third list. Now what is not allowed here? List 1 is India is, list 2 equal to list 1 plus my country. This is without the form of list, ये list के बिना लिखा गया है my country. This is string type. तो किसी भी लिस्ट को स्ट्रिंग टाइप में कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपका एरर आ जाता है. सिमिलर अगर आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें और सेपरेटेड बाय कॉमास, देन ओनली इट कैन बी कॉन्केटिनेटेड. यहाँ लिख रहा है टाइप एरर में, कैन ओनली कॉन्केटिनेट लिस्ट नॉट str टू लिस्ट.
लिस्ट में केवल लिस्ट का कॉन्केटिनेशन हो सकता है, किसी स्ट्रिंग का न्यूमेरिक का कॉन्केटिनेशन नहीं हो सकता है। L1 इक्वल टू 10 20 30, अगर मैं इसमें अलग से 40 ऐड करना चाहूँ L1 में विदाउट इम्प्लीमेंटिंग द लिस्ट, अगर तो ये एरर दे देगा। कैन ओनली कॉन्केटिनेट लिस्ट, इंट की लिस्ट जो है इंटीजर टाइप, इसके साथ ये इंटीजर टाइप लिस्ट बना दीजिए। अगर आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के देते तो इट कुड बी एडेड इजीली। So these are the two drawbacks you have to remember, that list object में list object का ही concatenation हो सकता है, remember. Now this is another programmatic example, programming example. एक L1 है, empty list मैंने initiate कर दिया और for I in range 5, यहाँ 5 एलिमेंट्स के लिए मैंने एक लूप चला दिया 5 टाइम्स के लिए 0 1 2 3 4 तक, और एक इनपुट दे रहा हूं x में x में इनपुट दिया, इनपुट ए नंबर इंटीजर टाइप, और लिस्ट में मैं ऐड कर रहा हूं L1 प्लस इक्वल टू लिस्ट टाइप x। जो x में आप नंबर डालेंगे वो लिस्ट के फॉर्म में मैं L1 में डालता जाऊंगा, L1 में कॉन्केटिनेट करता जाऊंगा। सो L1 इज इक्वल टू L1 प्लस लिस्ट टाइप x, वट एवर यू आर एंटरिंग इन द x। तो आप क्या करेंगे, इसमें जब ये रन करेगा तो आपसे पूछेगा एंटर ए नंबर, वो x में लेगा। लिस्ट वन ऑब्जेक्ट आपके पास रेडी है, उस x को लिस्ट में कन्वर्ट करके हमारा L1 में कॉन्केटिनेट कर देगा। ओके, इस तरह से ये 5 बार करेगा, 5 बार एलिमेंट्स लेगा, 5 बार L1 में कॉन्केटिनेशन करेगा, लास्ट में L1 को प्रिंट करेगा। तो यू कैन सी द आउटपुट, नंबर वी हैव एंटर्ड 4, 4 को कॉन्केटिनेट किया, लिस्ट में डाला, नंबर 6 7 4 8। सो अल्टीमेटली प्रिंट L1 करने पर लास्ट में यू आर गेटिंग ए लिस्ट 4 6 7 4 8। All these elements have been added in the list object L1 one by one through this loop. यहाँ पर अगर ये x विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट लिखते तो इट कुड हैव डिस्प्लेड दिस एरर, इस तरह की एरर आ जाती और ऐड ना होता। फाइन। So this is how concatenation operation can be done in lists. Now replication. Replication means repetition of list can be done using this operator, multiply operator, asterisk symbol. How it is done? Suppose we have a list L1 10 20 30, print L1 into 2 करेंगे आप, तो लिस्ट जो है ये 10 20 30 is going to be repeated 2 times to form a big list. 10 20 30 10 20 30, एक बड़ी लिस्ट 2 बार रिपीट होकर के क्रिएट हो गई। Suppose we have a list L2 math and IP, there are 2 elements. If I write print L2 into 3, so math IP math IP math IP is going to be, I mean, printed 3 times in a big list. Okay. मल्टीप्लाइंग ए लिस्ट विद अनदर लिस्ट क्रिएट्स एन एरर। अगर लिस्ट को लिस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर क्रिएट करेगा। जैसे मैंने प्रिंट L1 इंटू L2 कर रहा हूं तो यहाँ पर ये कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट टाइप लिस्ट। लिस्ट को आप किसी इंट से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट को लिस्ट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज गिवन इन द टाइप एरर मैसेज। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया इंटीजर वैल्यू से, यहाँ लिस्ट 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया इंटीजर वैल्यू से, लेकिन लिस्ट को लिस्ट से मल्टीप्लाई करने पर एरर आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन रेप्लिकेट लिस्ट फॉर नंबर ऑफ टाइम्स। अनदर ऑपरेशन इज मेंबरशिप टेस्ट। मेंबरशिप टेस्ट में आप किसी लिस्ट में किसी कैरेक्टर को, किसी वैल्यू को, किसी एलिमेंट्स को इन ऑपरेटर से ढूंढेंगे तो वो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। यहां देखिए मेंबरशिप टेस्टिंग इन लिस्ट, हमारे पास स्ट्रिंग इंडिया, दिस इज ए स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, प्रिंट आई इन str1। आप इसको भी एक तरह से लिस्ट समझ सकते हैं। अगर इसे लिस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा तो आई अलग, n डी आई ए, ये इस तरह से एक लिस्ट बन सकती है। यहाँ पर स्ट्रिंग में टेस्टिंग कर रहे हैं whether I is found in the string or not, so it is returning true। whether s is found in the str1 or not, इसमें s नहीं है so it is returning false।
S नॉट इन str1, क्या S str1 में नहीं है तो रिटर्निंग ट्रू, क्योंकि S str1 में नहीं है। तो दिस इज द केस ऑफ स्ट्रिंग मेंबरशिप टेस्टिंग। इसी तरह से लिस्ट में भी आप मेंबरशिप टेस्टिंग कर सकते हैं। सपोज दिस इज लिस्ट ऑब्जेक्ट L1 10 20 30 40, तो इसमें अगर मैं प्रिंट करता हूं 30 इन L1, तो because 30 is found in the list L1, that is why it is returning true. If I write 50 in L1, so 50 is not found in this list, that is why returning false. 50 not in L1, 50 L1 में नहीं है, that is why it is returning true. So इस तरह से in और not in ऑपरेटर का इस्तेमाल किसी भी लिस्ट में किया जा सकता है। It returns either true or false. If that element is found in the list, returns true. If that element is not found in the list, returns false. यहाँ एक छोटा सा इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के थ्रू किया जा रहा है। You can observe. I have a list L1 having values 10, A and 30. I have another list L2 having value A and B. इस पर मैं अगर लूप भी चलाना चाहूं तो लिस्ट पर लूप चला सकता हूं। फॉर I in L1, I में आपके L1 के एलिमेंट 10, A और 30 बारी बारी से ट्रांसफर होंगे और ये लूप 3 बार के लिए इंप्लीमेंट हो जाएगा, बिकॉज इट इज हैविंग 3 एलिमेंट्स। Once 10 will be fetched into I, then loop will go on. Another, A will be fetched into I, loop will carry on. Then 30 will be fetched into I, then loop will carry on. So in this way, this for loop will move 3 times, and within the body of for loop I am testing if I in L2, जो I आपका मान लीजिए पहली बार 10 आया, 10 in L2 में है, तो रिटर्न करेगा कि 10 is found in L2। नहीं तो रिटर्न करेगा, क्या प्रिंट करेगा, 10 is not found in L2। तो यहाँ पर 10 जो है वो L2 में नहीं था, इसलिए 10 is not found in L2 आउटपुट में आ गया। सेकेंड टाइम L1 में से सेकेंड एलिमेंट दैट इज A विल बी फेच्ड इनटू I में A आ गया। अब A is in L2, A in L2, यस ट्रू, ये ट्रू देगा आपको, तो ट्रू देगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, A is found in L2, that is why it is returning A is found into L2। थर्ड टाइम 30 will be fetched into I में 30 चला गया। if 30 in L2, क्या 30 L2 में है, नो, सो ये एल्स में जाएगा और यहाँ लिखेगा 30 is not found in L2, writing 30 is not found in L2। So this is how we can utilize in operator or not in operator for membership testing within the given list। लिस्ट में वो एलिमेंट मिलेगा, it will return true, according to you can do programming। if that element is not found in the list, it will return false। so accordingly you can implement it in your programming। now another operation, you have already learned how indexing is done in the list में indexing कैसे की जाती है, forward indexing and backward indexing or negative indexing you can say। suppose this is a list having value 1 5.2 96 face python 8.6, all mixed type values have been stored in this list object। so the indexes can be observed। पहला आपका है 1 का इंडेक्स 0, 5.2 का इंडेक्स 1, 96 हैविंग इंडेक्स 2, फेस हैविंग इंडेक्स 3, पाइथन 4, 8.65। नेगेटिव इंडेक्सिंग 8.6 -1, राइट टू लेफ्ट चलते हैं हम इसमें, पाइथन -2, फेस -3, 96 -4, 5.2 -5, 1 -6। So that means if I want to extract this one, so I can refer list of 0 or list of -6। so that means we are referring 1, 1 will be retrieved। if you want to retrieve face, so you can write list bracket square bracket में 3 या list square bracket में -3, both are indicating to the content face in the list object। 8.6 can be referenced as list of -1 or list of 5। so one thing you have to remember, whenever we are doing forward indexing,
Positive indexing from left to right. Indexing starts from 0 onwards. And when we are, doing backward indexing from right to left, so indexing begins from -1. This is the point to remember. Now here are certain examples of the same list given. You can easily understand. This is the list object. List of 0 is 1. List of 2, 0, 1, 2 is 96. List of 3 is face. List of -1 is 8.6. List of -2 is Python. So this is how indexing is done to access each and every element of the list object. Another type of operation that we can perform in list is list slicing. Slicing means extracting subpart or subset of a given list is known as slicing or chopping or extraction from a big list. Small lists can be chopped out. It is done using indexing. Indexing का यूज करके ये सारा हम कर सकते हैं. इसके लिए स्लाइसिंग के लिए सिंटैक्स है लिस्ट ऑफ स्टार्ट कॉलन स्टॉप कॉलन स्टेप. स्टार्ट मीन्स कहां से इंडेक्सिंग शुरू होगी, कहां से एलिमेंट चॉप करना है. स्टॉप का मतलब इस पे स्टॉप हो जाएगा, इससे एक पहले तक चॉपिंग होगी. स्टॉपिंग इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करता है चॉपिंग में. स्टेप का मतलब होता है कि कितने कितने स्टेप जंप करते हुए अगला एलिमेंट वो चॉप करेगा. So this will be clear to you through these examples. Suppose we have the list L1, 21, 45, 67, 89, 90, 54 and 34. Print L1. यहाँ पर अब यहाँ पर स्टेप जो है वो ऑप्शनल है. ओके, स्टेप इज ऑप्शनल. ये सभी ऑप्शनल है पैरामीटर्स. इनके बिना भी कई चीजें होती है, मतलब लिस्ट की स्लाइसिंग हो सकती है. बट व्हाट इज देयर यूटिलिटी? Varieties of examples are given just to make the things clear. L1 0 colon 5. इसका मतलब हुआ कि 0th इंडेक्स नंबर से 0 1 2 3 4 तक चॉपिंग होगी. कि 0 1 2 3 4 यानी कि 21 से 90 तक. यू कैन सी 21 से लेके 90 तक एलिमेंट्स चॉप हो गए. एक नई लिस्ट बन गई. इसे आप चाहें तो नई लिस्ट में असाइन कर सकते हैं. लाइक L2 is equal to L1 of 0 colon 5. Okay. Print L1 colon 7. Colon 7 means stop दे रहे हैं आप, और स्टार्टिंग नहीं दी गई ना, स्टेप दी गई. So how can you access it? यहाँ पर बिगिनिंग से लेकर के 6 तक, इंडेक्स नंबर 6 तक की चॉपिंग होगी. यानी 0 1 2 3 4 5 6. ओके. सो ये 6 एलिमेंट्स आप देखें 0 1 2 3 4 5 6. दीज आर बीइंग चॉप्ड आउट. प्रिंट L1 ऑफ 4 colon. 4 colon मींस इंडेक्स नंबर 4 onwards all values. तो यहां देखें 0 1 2 3 4. 4 means 90 onwards. So that means 90, 54 and 34 will be chopped out. 90, 54 and 34 is chopped out. Next example L1 colon 2. First column means start and second column means up to end and jumping by 2. दो एलिमेंट्स की जंपिंग होगी. दैट मीन्स स्टार्टिंग 21, उसके बाद जंप किया 67, दो जंप किया 90, दो जंप किया 34. सो यू आर गेटिंग हियर 21, 67, 90 एंड 34 अप टू लास्ट. यहाँ पर कॉलन -1. यहाँ पर राइट साइड से आपकी चॉपिंग होगी. सारे एलिमेंट्स राइट टू लेफ्ट ये प्रिंट करेगा, रिवर्स कर देगा. So it is reversing 34, 54, 90, 89, 67, 45, 21, 34, 54 and so on up to 21. So ये रिवर्स किया है यहाँ पर. Same example colon -1. By mistake it has been repeated. So the same result it is giving. L1 colon का मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप जंप करेगा. सो कंप्लीट लिस्ट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड. यहाँ पर सारी की सारी लिस्ट एलिमेंट्स यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, ऑल 7 एलिमेंट्स.
लिस्ट वन ऑफ 5:1, 5 से शुरू हो और 1 तक जाए। 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप देखें 5 से शुरू होगा और 1 तक कैसे जाएगा, जब तक कि आप यहाँ स्टेप नहीं देंगे। सिंस यू आर नॉट गिविंग द स्टेप, सो इट इज टेकिंग द स्टेप साइज 1, और 5 से 1 तक जाने के लिए नेगेटिव स्टेप चाहिए। सो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट। इसका मूवमेंट होगा नहीं 5 से लेके 1 तक, रिवर्स डायरेक्शन में आपको -1 देना ही पड़ेगा। अगर -1 नहीं देते हैं तो ये एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा। Okay, because it is not possible to jump backward until we specify third parameter, that is colon -1। अगर आपका पहला इंडेक्स जो है वो बड़ा होता है और दूसरा स्टॉपिंग इंडेक्स छोटा होता है, so it is must to give the step size in minus, otherwise it will not jump and it will not chop out any sub part of the list, rather it will create empty list। यहाँ पर आप देखें लास्ट एग्जाम्पल 4::, यानी चौथे इंडेक्स से लेकर के आखिरी इंडेक्स तक एक एक जंप करता हुआ। तो चौथा इंडेक्स आप देखिए 0 1 2 3 4, यहाँ से लास्ट इंडेक्स तक एक एक जंप करते हुए, सो इट विल चॉप आउट 90 54 34। सेम आंसर हियर, same output is being given। So these are the 5 operations we have done, that was number 1 concatenation, number 2 replication, number 3 membership testing, fourth list indexing to access each and every element, and fifth is list slicing to take out the chunk of list to create another small list, to take out the sub part of a list to create another small list। So that's it about this video. Thank you very much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.